Hello dear students, I am Nupur Chandra, your English teacher. Welcome you all in our channel Sims Official, and I also welcome you all in our English classes. So today I will explain lesson 10 of your MCB book, The Turning Point. This lesson is adapted from a novel To Serve with Love by E.R. Braithwaite. E.R. Braithwaite was a teacher by profession. Now I will tell you more about this novel. To Serve with Love is a testimony written by E.R. Braithwaite, a book which centers on a teacher who is telling his experience that how he developed a relationship with his rude, disobedient and hostile students. The theme of this novel is racism mainly. In this, Braithwaite told that what he faced because of his color. So very emotional novel is it by a teacher. E.R. Braithwaite was a Guyanese-born British-American novelist, writer, teacher and diplomat. And he best known for his stories of social conditions and racial discrimination against black people. He born in Guyana on June 27, 1912. Both his parents went to Oxford University. So he grown up with education, achievement, and parental pride. After war, he took up a job in a school as a teacher. While that, he wrote this novel, To Serve with Love. So now we will start our lesson. Keep watching this video. So बच्चों, in this lesson, as I told you in the introduction, you will learn about a person who was a teacher. Okay, so let's start the lesson. The Turning Point, adapted from To Serve with Love by E.R. Braithwaite. Here you can see some pictures, and the warm-up is, look at the pictures given below. With which games will you associate them? Write the names in box under each picture. Now what you will do, you will see this picture and you will write the name that from which game this picture belongs to. ये पिक्चर किस गेम से रिलेट करते हैं. Now let's start the lesson. On Thursday morning, the class seemed to be in the grip of some excitement and expectancy. Thursday की सुबह क्लास जो था वो कुछ ऐसा लग रहा था कि किसी एक्साइटमेंट की गिरफ्त में हो या वहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेंसी चल रही हो, जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ होने वाला है. During the recess, they stood about the classroom, a little whispering group which fell silent as I approached. वो बता रहे हैं कि ड्यूरिंग द रेसेस, यानी रेसेस के टाइम पर, इंटरवल के टाइम पर, वो लोग सब छोटे छोटे से ग्रुप्स में बनाकर खड़े हुए थे जो विस्पर कर रहे थे आपस में. विस्पर मीन्स आपस में फुसफुसा के हल्के हल्के बातें कर रहे थे. बट विच फेल साइलेंट एज आई अप्रोच्ड. लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वो सब बिल्कुल एकदम साइलेंट हो गया, शांत हो गया. बट आई कुड रीड नो स्पेशल सिग्निफिकेंस इन टू दिस. लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं लगा. द लेसन प्रोसीडेड मोर और लेस नॉर्मली बट हैविली. अब लेसन जो था वो शुरू किया गया मोर और लेस नॉर्मली, मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा था जैसे सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन बड़े भारी से मन से मैंने लेसन स्टार्ट कर दिया. इन द आफ्टरनून वी वेंट डाउन टू द जिम फॉर द यूजुअल पीटी पीरियड. अब दोपहर के टाइम में हम जिम में गए, जो हमारा पीटी पीरियड था उसके लिए. यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीचर खुद से बता रहे हैं. द इक्विपमेंट वॉज नीटली अरेंज्ड अराउंड द क्लियर्ड डाइनिंग हॉल. और जितने भी इक्विपमेंट थे वहाँ पर, जिनके जो भी सारी चीज़ें थी, मशीन्स थे, वो सब बहुत अच्छे से अरेंज किए हुए थे. वॉल्टिंग हॉर्स बर्क, जंपिंग स्टैंडर्ड, मेडिसिन बॉल्स, बोर्ड, सेवरल पेयर्स ऑफ बॉक्सिंग ग्लव्स slung by their laces across the vaulting horse. अब वो कह रहे हैं यहाँ पर क्या क्या था. वॉल्टिंग हॉर्स थे, जंपिंग स्टैंडर्ड्स थे, मेडिसिन बॉल्स थी, बहुत सारे बोर्ड्स थे, और उसके अलावा बहुत सारे ग्लव्स थे जो अपने लेसेस यानी कि फीतों से कहाँ पर टंगे हुए थे, वॉल्टिंग हॉर्स के ऊपर टंगे हुए थे. द बॉयज़ वर विद वन एक्सेप्शन barefoot and wearing only blue shorts.
वो कह रहे हैं केवल एक लड़के को छोड़ के बाकी सारे लड़के बेयर फुट यानी नंगे पाँव थे और अपने ब्लू शॉर्ट्स पहने हुए थे. सेपियानो सेट ऑन अ लो फॉर्म. सेपियानो इज़ अ नेम ऑफ अ बॉय. वो बड़े मतलब लो फॉर्म यानी कि बड़ा हल्का सा, बहुत ही थका हुआ, सुस्त सा बैठा था. क्यों बैठा था? हिज राइट आर्म बैंडेज्ड फ्रॉम एल्बो टू रिस्ट. क्योंकि उसका जो सीधा हाथ था, राइट हैंड था, वो कोहनी से लेके कलाई तक, रिस्ट मतलब कलाई तक, पूरा उस पर पट्टी हुई हुई थी. लाइन अप इन द सेंटर विल यू आई बिगिन. वो कहते हैं कि चलिए, मैंने उनको बोला कि ठीक है चलिए आप लोग सब सेंटर में लाइन अप हो जाइए. दे इगरली ओबेड फॉर्मिंग टू नीटली ग्रेडेड लाइन्स. उन्होंने जल्दी से मेरी बात को माना और दो बिल्कुल अच्छी सी लाइन बना लिया. बट देन डेनहम स्टेप्ड फॉरवर्ड. लेकिन तभी डेनहम इज़ द नेम ऑफ अनदर बॉय, वो आगे की तरफ आया. प्लीज़ सर मीन्स सर मेरी बात सुनिए. यस डेनहम. टीचर ने कहा हाँ डेनहम बोलिए. कांट वी हैव बॉक्सिंग फर्स्ट टुडे? प्लीज़ सर. उसने कहा कि क्या हम आज पहले बॉक्सिंग नहीं कर सकते सर? वाई डेनहम? तो टीचर ने कहा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ओ नथिंग सर, जस्ट फील वी वुड लाइक टू हैव अ बिट ऑफ चेंज सर. तो डेनहम ने आंसर किया कि बस कुछ भी नहीं, मैं ये चाहता था कि हम थोड़ा सा चेंज लाएं, मतलब अपना रूटीन जो है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाएं. ओ वेरी वेल आई रिप्लाइड, गेट योर सेल्फ इन टू पेयर्स अकॉर्डिंग टू साइज. तो टीचर ने कहा कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, चलो गेट योर सेल्फ इन टू पेयर्स अकॉर्डिंग टू योर साइज. यहाँ पर वो किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं? ग्लव्स के लिए. उन्होंने कहा कि ठीक है अपने साइज़ के ग्लव्स ले लो और पहन लो. द पेयरिंग वॉज कम्प्लीटेड इन अ मोमेंट एज इट बाय प्री अरेंज्ड. ये पेयरिंग जो थी यानी कि अपने साइज़ के ग्लव्स ढूंढना तो बहुत ही जल्दी हो गया. क्यों? क्योंकि वो सब पहले से ही सेट हो रखा था. बच्चों ने पहले से ही ये सारी चीज़ें जो थी प्री अरेंज यानी पहले से ही उनको रेडी किया हुआ था. ओनली डेनहम रिमेन्ड अनपेयर्स. लेकिन डेनहम जो थे वो अनपेयर्ड रह गए. क्यों? क्योंकि उनका जो साथी था ना सेपियानो, उसके चोट लगी हुई थी. माई पार्टनर क्रिपल्ड सर. वो कहते हैं कि सर मेरा पार्टनर तो चोट लगी हुई है उसको. ही इंडिकेटेड द बैंडेड सेपियानो. और उन्होंने सेपियानो की तरफ को इशारा कर दिया, हेराल्ड कर दिया. विल यू हैव अ गो विद मी. उन्होंने अपने टीचर से पूछा डेनहम ने कि क्या आप मेरे साथ बाउट कर लेंगे, फाइट कर लेंगे. एज दिस द अदर्स as if one moved quietly towards us, watchful listening. As this the others, as if one moved quietly towards us, watchful listening. जब ये हुआ तो मतलब सब तो बिल्कुल शांत खड़े थे, केवल वही आगे की तरफ आए. The pieces were falling into places. The penny had finally and fatefully dropped. जो पेनी थी वो फाइनली एंड फेटफुली ड्रॉप. पेनी यानी कि सिक्का जो था उसे उछाला गया. They will be done in, sir. I don't mind having a knock with you. वो कहते हैं कि ये सब तो हो जाएगा सर, मतलब मैं आपसे एक नॉक यानी आपसे एक छोटी फाइट करना चाहता हूँ. Go on sir, take him on. अब बाकी बच्चे क्या कहते हैं? This chorus of encouragement was definitely not in my best interest. यहाँ टीचर बता रहे हैं कि कोरस में बाकी सब लड़कों ने क्या कहा कि हाँ हाँ ठीक है सर, इसके साथ एक फ़ाइट कीजिए. और वो कह रहे हैं कि ये जो कोरस में सबका इनकरेजमेंट था ना मुझे आगे बढ़ाने के लिए, वो मेरे इंटरेस्ट में तो नहीं था, क्योंकि ये बच्चों की पहले से ही प्लानिंग थी. द नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो.